मन में मुझे अब एक चीज ठान लेनी है कि मुझे क्लास रेगुलरली अटेंड करनी है। जितना आप अपने डाउट्स पूछोगे, जितना अपनी कंफ्यूजन हमारे सामने लाओगे, उतना हम आपको हेल्प कर सकते हैं। कि ये प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स हैं बेटा, यहाँ मेहनत लगेगी, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा। जो भी जन फेल होता है ना इन एग्जाम्स के अंदर, वो सिर्फ इसीलिए होता है कि अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेगा। All right, as you guys do that, let me just lay the foundation in terms of what is that we intend to cover today. Firstly, one of the agenda for today is of course to welcome you all. This is certainly gonna be a perfect segue to get into any corporate in the world. Uh, किसी की भी journey, including myself, has always started like this. I'm sure this is certainly gonna take shape over a period of time for you to really come up the curve and of course be part of the big fours, big threes, big twos, and so on and so forth. But सबसे पहली चीज, I think that's going to be very important, is to introduce myself first. My name is Pankaj Dhingra. Uh, I am a qualified chartered accountant and a CPA from US. Last 25 years or so, I've been into various corporates, and you would see those corporates walking in some of our placement drives that we do with them. I've been the global controller for Wipro for more than a decade. From there, I joined as the CFO for BlackRock. I don't know if you guys know BlackRock. BlackRock is the largest asset manager in the world. I was their CFO based out in Hong Kong and shuttling between India, Hong Kong, 15 days India, 15 days Hong Kong, and so on and so forth. Uh, After that, I joined BCG, the Boston Consulting Group, the big three, big two, as you may want to call it. I was their finance head based out in Boston, US. Uh, while I've been working in these corporates, I've been very close to the academics. I've been teaching Indian CA, US CMA, US EPA, ACCA, and so on and so forth. और आप लोग भी इन सम शेप ऑफ फॉर्मेट मेरे पास आओगे जब प्रोफेशनल लेवल पे हम लोग एसपीएल एसपीआर पे विल स्टार्ट डिबेटिंग ऑन दैट, बिकॉज आई टीच एसपीएल, आई टीच एसपीआर, and so on and so forth, and various subjects that, and we keep doing these master classes like what we're having today, wherein we'll, of course, we'll set the stepping stone for all of you to really understand कि बॉस आने वाली जो जर्नी है वो कैसी दिखने वाली है, हम क्या करने वाले हैं, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्या क्या चीजें हमें करनी है। हम बहुत सारे सेशन करेंगे ऐसे जो मास्टर क्लास में, जिसमें जो एजेंडा ओरिएंटेड होंगे। जैसे आज का एजेंडा जो है वो प्राइमरली इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन फॉर योर सेल्फ, फॉर अस, एंड ऑफ कोर्स टू टेल यू कि करिकुलम कैसा रिवॉल्व करता है, एफआर दिखता कैसा है, एफआर में होता क्या है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो दैट्स व्हाट we'll be covering it today. But we do various master classes to really make you equipped from the industry relevant curriculum. For example, you may get to see some corporate guy walking out here talking to you कि finance क्या क्या चीजें देख रहा है। We may do some sessions on artificial intelligence. We may do some sessions on financial modeling. We may do some sessions on stock market. We may do some exceptionally, I would say, targeted courses for yourself in terms of you building your presence onto the social media. We may do LinkedIn profiling for yourself in terms of how should you be profiling and of course managing yourself when it comes to the social media, because that's where the bucks really stop when it comes to the corporate. We also do some, I would say, interview skills kind of curriculums, group discussions. We also do some resume building sessions and so on and so forth. So all of that would be covered in various master classes as we really progress from here. And of course, targeting to and of course, getting on to. But what is going to be super important for all of us, especially from the perspective of the curriculum that we really have in front of us, is कि बेटा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमें क्या स्ट्रैटेजी ऐसी लगानी है,
which we should be able to, get a hand of, get a complete hold of, and of course, we should so much so that we are able to kill this exam in the first go. FinTran Global is a trusted brand for various students around the world, primarily because of our results. एंड वो रिजल्ट तभी आते हैं बेटा जब आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, जो मैम या सर जो भी आएंगे वो आपको देंगे। एक ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है इन टर्म्स ऑफ किलिंग दीज एग्जाम्स एंड ऑफ कोर्स स्कोरिंग एंड डूइंग वंडर्स इन सम शेप ऑफ फॉर्मेट। बट वो स्ट्रैटेजी बच्चे तभी काम करेगी जब आप हमारे साथ वो बातें करोगे या वो चीजें करोगे जो आपको बताई जाएंगी। अभी I was just walking down and there was a girl who just gave the exam and she scored 82% in financial accounting. So, and she was like, sharing this with ma'am. Ma'am teaches financial accounting, financial reporting. So those things only happens. Some of you are coming from the knowledge level to us. They already know in terms of, what we have been delivering, what we have been really looking forward to. What is really important out here is that you should really understand कि एक strategy है जो help करेगी इसको kill करने में, और हमें उस strategy पे trust करके उस strategy को आगे लेके जाना है. I think that's the basic mantra that we really want you to really believe on and work on as we really go forward. Now, two things that are really important out here. One is to, one is to understand you more. कुछ जन ऐसे होते हैं जिनका अकाउंटिंग या रिपोर्टिंग स्ट्रांग होता है, कुछ जन ऐसे होते हैं जिनका अकाउंटिंग स्ट्रांग नहीं होता है, कुछ जन ऐसे होते हैं जो काफी सारा गैप ले लेते हैं इस स्टेज तक आने के लिए इन टर्म्स ऑफ they're ready for taking the leap and of course getting on to the next level. कुछ लोग होते हैं जो फटाफट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अभी किया, अभी की अभी कर लिया, रुकना नहीं है। हमारा जो करिकुलम ड्राइव होगा या करिकुलम चलेगा वो बेस को लेके चलता है। तो जिस भी जन का बेस वीक है उसको भी घबराना नहीं है, बिकॉज बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे हम लोग कुछ भी वी आर नॉट ट्राइंग टू इन्वेंट द रॉकेट आउट हियर, वी विल नॉट एंड वी विल नॉट। what we would be doing is that we'll be starting from the scratch, एक एक करके brick by brick we'll be building the foundation for yourself and then we'll be capitalizing on it as we really go forward, because financial reporting का बहुत बड़ा रोल रहेगा प्रोफेशनल लेवल पे जब आप स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग को हिट करोगे। So it is gonna be a real game changer there. तो यहाँ पे हमें फाउंडेशनली बहुत स्ट्रांग होना है और हम उसके लिए हर हर कोशिश करेंगे as a team. So that's going to be the mantra. We'll be, of course, getting on to the detailing of, how the curriculum, and of course, ma'am will take it on in terms of, what the structure is going to be when it comes to the syllabus, when it comes to the content, when it comes to the overall things that you'll be doing out here. We'll certainly touch upon that. But what is really going to be relevant out here right now at this point in time is to think through two important aspects. One is that, मन में मुझे अब एक चीज ठान लेनी है कि मुझे क्लास रेगुलरली अटेंड करनी है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा बच्चे आप में से कि आप कोई भी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बाद में देखो। बेस्ट इज कि आप क्लास में आओ। अगर आप क्लास में नहीं भी आ सकते फॉर वट एवर रीजन, तो आप बच्चे क्लास को लाइव देखोगे अपने घर से। जितना बच्चे आप हमें लाइव देखोगे, जितना आप अपने डाउट्स पूछोगे, जितना अपनी कंफ्यूजन हमारे सामने लाओगे, उतना हम आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आपने कहीं भी ये सोचा कि मैं समझ लूंगा, मैं देख लूंगा, ये तो हो जाएगा, ये मुझे आता है, जय माता दी, नुकसान होने वाला है, पक्का से होने वाला है। मेरे को घर से 100% ये सोच के आना है कि 3 घंटे की क्लास होगी, 2.5 घंटे की होगी, जितनी भी देर की क्लास होगी, मैं अपना पूरा 100% क्लास में समझने के लिए दूंगा। वी आर नॉट इन क्लास 12th एनी मोर, वी आर नॉट इन बीकॉम फर्स्ट ईयर एनी मोर। ये अगर एग्जाम इतने आसान होते तो फिर इनकी वैल्यू नहीं होती, जैसे कि बीकॉम की नहीं होती है। ये एग्जाम का लेवल अप होता है, इसीलिए जब आप इसे क्वालिफाई करते हो बेटा, तो कॉर्पोरेट रिकॉग्नाइज करता है, आपको वैल्यू करता है, और वो जॉब में उतने पैसे आपको देने की नीयत रखता है जो पैसे आप डिजर्व करते हो। बट वो मिलेंगे तभी बेटा जब हम इसको क्वालिफाई करें। इसीलिए क्योंकि ये पहला सेशन है,
एंड बिल्कुल डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, माई प्रेरणा में माइट बी लुकिंग एट टू यू नो एंड एट मी, बट मैं बिल्कुल डराने के परस्पेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ मैं। आई जस्ट वांट ऑल ऑफ अस टू रियली अंडरस्टैंड दिस कि ये प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स हैं बेटा, यहाँ मेहनत लगेगी, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो मरना तो पड़ेगा बेटा, 100% पड़ेगा। और जो इस कष्ट को सहन कर गया वो फिर फ्लाइटों में भी मिलेगा, वो लंदन में भी मीटिंग अटेंड करेगा, वो गुड़गांव में, मुंबई में, हैदराबाद में, बैंगलोर में टॉप नॉच कंपनीज का पार्ट भी बनेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कष्ट तो बेटा सहना ही पड़ेगा। तो अपना मन बनाना है सबसे पहली चीज कि हाँ मैं अब क्लास रेगुलरली अटेंड करूंगा, मैं रेगुलरली आऊंगा, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्लासेस मैं फेस टू फेस अटेंड करूं या लाइव ऑनलाइन अटेंड करूं। रिकॉर्डिंग्स मेरी लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। साइंस वाले बच्चे होते हैं ना जो, उन पे ना ये प्रेशर 11वीं क्लास से पड़ जाता है, क्योंकि 10वीं करते हैं तो 11वीं से माता पिता या जेई की तैयारी करा देते हैं या नीट में डाल देते हैं, तो 11वीं 12वीं तक ना इन्हें एक बहुत सारी मेहनत करने की ना आदत हो जाती है। बट हम जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं ना, हमारे हमारा ट्यूबलाइट जलती है 12वीं के बाद, पता ही नहीं होता है, राइट। अब 12वीं के बाद चली पर बीकॉम साथ चल रही है, तो अब थोड़ा सा वो वाला पार्ट भी एंजॉय करना है, कॉलेज जाना है, एक्स वाई जी, एंड फिर हमें पढ़ाई भी करनी है। तो हम लोग थोड़ा सा लेट होते हैं इन टर्म्स ऑफ आर प्रोग्रेशन। अब हमें अपनी थोड़ी सी कमर कसनी है और जान लगा के इस तरफ दौड़ना है। मुझे मेरा जो 80 to 90% का पास आउट रेट है ना, मुझे वो मेंटेन करना है। और वो मेंटेन करने के लिए क्या करना है, मुझे जान लगानी है। जैसे टीचर्स लगाएंगे ऐसे ही हमारे बच्चे भी लगाएंगे। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। दूसरी बात, पहली बात क्या थी? पहली बात थी कि मैं क्लास में आऊंगा, मैं मैक्सिमम क्लासेस लाइव अटेंड करूंगा, फेस टू फेस अटेंड करूंगा, रिकॉर्डिंग्स पे लीस्ट रिलाई करूंगा। बिल्कुल ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं क्वेश्चंस को अपने हाथ से प्रैक्टिस करूंगा। जो भी जन जो भी जन, पूजा कुमारी जी, हर्षदीप जी, जो भी जन फेल होता है ना इन एग्जाम्स के अंदर, वो सिर्फ इसीलिए होता है कि अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करे। जिस भी जन ने वीडियोस के ऊपर, मैडम के सॉल्यूशंस के ऊपर, मैडम के सॉल्व करने के ऊपर रिलाई किया ना भुवनेश्वर शर्मा जी, उसकी बैंड बजनी एग्जाम में तय है। जिस भी जन ने, चंद्रशेखर जी कैमरा ऑन करो, जिस भी जन ने हाथ से क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, उसकी परफॉर्मेंस अपने आप निखर जाती है, एग्जाम में अपने आप रिजल्ट भी बताते हैं। जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, वी हैव अ स्टडी टेक्स्ट, फिनट्राम स्टडी टेक्स्ट फॉर यू, वी हैव आवर ओन रिवीजन बूट कैंप, हमारी अपनी बुक्स होती हैं, आपको कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। उन बुक्स के अंदर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस सारे दिए होते हैं। हमने उन क्वेश्चंस को कम से कम 2 से 3 बार अपने हाथ से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद क्लास टेस्ट होंगे, मॉक एग्जाम्स होंगे, हमें वो करने हैं। और उसके बाद हमें सिर्फ पंकज चिंगरा को बुला के कॉफी पिलानी है प्रेरणा मैम के साथ। ऐसा नहीं है बेटा, इसी कारण से मेरी कॉफी जो है ना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड आउटस्टैंडिंग है। कोई कंट्री ऐसी नहीं होगी जहां पे मेरी कॉफी ड्यू नहीं होगी। उसका कारण ही सिर्फ ये है कि हमें एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, और वो स्ट्रैटेजी फॉलो करके हमें सर को कॉफी पिलानी है। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है बड़ी? बिल्कुल आती है। हर्षदीप जी, बात समझ में आती है? अनम्यूट कर जी ले सर। पुत्र। हाँ आंधी हाँ जी तेरे सर, आती है। फोन लग गया ना, मुंडा बोले है मेरे तो। ठीक है, जी। बढ़िया। विशाली दुबे जी, बात समझ में आती है मेरी? Yes, sir. यस मैम। ऑलराइट, अब एक क्विक राउंड रॉबिन राउंड खेलेंगे, जिसमें मुझे ना सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन चाहिए। मैं नाम तो इतने सारे याद नहीं रख पाऊंगा, तो नाम मुझे नहीं भी बताओगे कोई कोई बात नहीं। मुझे सिर्फ ये समझना है कि आप अभी क्या कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर ग्रेजुएशन, या कोई और कोर्स कर रहे हो। दूसरा, अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो वो कंपनी कौन सी है और आप काम क्या कर रहे हो। बस मुझे 2 चीज जाननी है। नाम मुझे याद रहेंगे नहीं तो उसका कोई फायदा है नहीं।
आपसे चलें सर, आपसे शुरू करें, बताइए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ओके वेरी गुड। उसके साथ ग्रेजुएशन चल रही है, ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो तो पहले ट्वेल्थ अभी दी है, फिर देने वाले हो, तो ग्रेजुएशन अभी शुरू नहीं करी, तो पिटाई यहीं करूं या बाहर जाके करूं? साल क्यों वेस्ट करना है अपना? सबसे पहले ग्रेजुएशन शुरू करनी है, मीटर डाउन करना है, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, बट मीटर डाउन करना है। टिक इन द बॉक्स है ना, उसके बिना बहुत सारे रास्ते बंद हो जाते हैं आगे। टिक इन द बॉक्स को शुरू करना है, पीछे नहीं हटना है, फटाफट से। सीए कर रहे हो, सीपीटी क्लियर हो गया? सीपीटी की तैयारी चल रही है, ऑलराइट। बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स कहाँ से? सोल से। उसके साथ बैडमिंटन, वो तो बंद कर दिया तुमने, मेरे साथ खेलता था सुबह। बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम बी आर अम्बेडकर कॉलेज। बी आर अम्बेडकर के साथ हमारा टाइप है, मेरे को देखा है वहां पे? नहीं देखा है, मैं 2-3 सेशन कराया हूँ बी आर अम्बेडकर में, यही दीनदयाल उपाध्याय जो था पहले करमपुरा पे। ओके, हम बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के साथ काम करते हैं, तो वो और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के साथ आता है ना, वाईपी के नीचे। बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, लेकिन उसके साथ कुछ कर रहे हो बेटे? मैम, बीकॉम बीकॉम प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग, ओके। प्रोग्रामिंग में क्या होता है बेटा? आईटी साइड है सारा? नो नो, प्रोग्राम प्लेन बीकॉम, ओके ठीक है, बीकॉम पास। सर, आई एम आल्सो डूइंग बीकॉम प्रोग्रामिंग फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। नाम चेंज हो गया कि प्रोग्रामिंग कर दिया इन्होंने? पास को प्रोग्रामिंग कर दिया। हाँ, हम थोड़ा पुराने हो गए ना। I did my BCom honors from DCAC, Delhi College of Arts and Commerce, and it was year 1997. So, yes sir. बीकॉम प्रोग्रामिंग फ्रॉम So, okay, yes sir. I'm currently working in a company named AMPL Infratech Limited as a spine security. वेंडर पेमेंट में या पेरोल में? Data entry type. और पढ़ाई क्या कर रहे हो बेटे? I've done my BCom. खत्म हो गई बीकॉम, वेरी गुड। हाँ जी सर। I'm also working in a trading company. स्टॉक ट्रेडिंग? स्टॉक ट्रेडिंग बेस यो डील करता हूँ लुब्रिकेटिंग और बेस ऑयल में, ठीक है। उस कंपनी में, और 2024 में बीकॉम पास आउट है प्रोग्राम। Sir, BCom honors from DU College for the second semester. कुछ कर रहे हो परिनाल? कुछ नहीं कर रहे, ओनली BCom honors from DGS. वेरी गुड। साथ में कुछ हो रहा है? यस मैम। बीकॉम and डेटा एनालिटिक्स, वेरी गुड। BCom honors from DCAC. ओ यार, फिर आ जा। पता है डीसीएसी फुल फॉर्म क्या है? Delhi College of Arts and Commerce. नहीं, डीसीएसी फुल फॉर्म है डोंट कम टू अटेंड क्लासेस। Attendance का नो, issue. आई बीन जब हम लोग पढ़ते थे डीसीएसी में, तो वहाँ अटेंडेंस का भी इशू हुआ ही नहीं कभी। जमाना चला गया ना, तो हम लोग तो बोलते थे डीसीएसी मींस डोंट कम टू अटेंड क्लासेस, बाकी सब चलेगा यहाँ पर। ऑलराइट, ओके, P2P, ओके ओके। करा क्या है बच्चे? यस मैम, वेरी गुड। हाँ जी, पूजा कुमारी जी। हाय सर। यस, हेलो जी। हाय सर, मैंने ग्रेजुएशन किया है बीकॉम ऑनर्स में, फिर एमकॉम किया है, फिर मैं एक कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ, और करंटली मैं आयरलैंड में रहती हूँ। सो अच्छा, मैं सीएस भी हो, वेरी गुड वेरी गुड। एंड तो अभी यहाँ पे हाँ, आके आई रियलाइज्ड कि जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो ग्लोबली एक्सटेंड नहीं करती, एंड आई रियली नीड टू ब्रिज दैट गैप। सो इसलिए मैंने एसीसीए परस्यू करना स्टार्ट किया अभी। सो बेस्ड ऑन दैट मुझे पता चला कि जो कंपनी सेक्रेटरी मैंने फाइनल किया है, तो उससे मुझे कुछ एग्जेम्पशन भी नहीं मिली इसमें। नहीं मिलेगी, और है भी नहीं। यहाँ पे कंप्लायंस का इतना वो नहीं है। मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ शिफ्ट हुई हूँ अभी 6 महीने पहले, तो एसीसीए मेरे लिए एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है अगर मुझे ईयू मार्केट में यहाँ पे कुछ करना है, यूएस एंड यूके ग्लोबली। मेरे पास डबलिन में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इवन इस बार एसबीएल भी दे रहे हैं मेरे साथ, तो काफी सारे बच्चे हैं। आयरलैंड में काफी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है, राइट? है, या आई नो। और वो लोग मैंडेटरी करते हैं एसीसीए को, कि अगर एसीसीए होता है
तो वहाँ बिकॉज लोकल क्वालिफिकेशन वहाँ कोई नहीं है, वहाँ ACCA को ही रिकॉग्नाइज करते हैं वो लोग। एग्जैक्टली अगर यहाँ आपके पे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट आयरलैंड वाला है, बट वो आई थिंक उसमें बहुत लंबा प्रोसीजर है उसका। वो वैल्यू वो, और कोई भी बाहर का पाजी पाजी चलो अच्छे आ जाओ, अच्छे आ जाओ, चलो अच्छे आ जाओ, और तेज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बट थोड़ी देर बाद भी तो हो सकता है थे। पूजा कुमारी जी, जो आयरलैंड का चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, वो इंडियन स्टूडेंट नहीं कर पाता है, बिकॉज उसकी ना लोकल डोमिसाइल की भी रिक्वायरमेंट है, इस करके भी लोग ACCA करते हैं, और इसलिए ACCA की डिमांड आयरलैंड में काफी ज्यादा है। मतलब आयरलैंड में काफी सारे स्टूडेंट हैं, मैं आपको कुछ से इंट्रोड्यूस भी करा दूंगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो क्वालिफाई कर गए हैं ACCA, सो वी कैन इंट्रोड्यूस यू देयर। यस। हर्षदीप पुत्र, पुत्र यार तू बार बार कैमरा बंद कर देना। जी सर। हाँ सर जी नहीं, बीकॉम क्या जी, प्रोग्राम कर रहा क्या हूँ जी, सर। पहले क्या जी नहीं सर हूं नहीं करांगा। जी नहीं सर, उन्हें करूँगा। हाँ एल गल सुना हो 10 सर बीकॉम प्रोग्राम कर रहा हूँ सर, फर्स्ट ईयर में हूँ सर, GGS कॉलेज, SGGSC। समझ गया जी, ठीक है। विशाली दुबे जी, मैं बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। वेरी गुड, ओके। भुवनेश्वर शर्मा जी, सर मैं CA परस्यू कर रहा हूँ एंड बीकॉम भी चल रही है अभी। ओके ओके। सूर्य प्रताप सिंह, सर जी सर, बीकॉम ऑनर्स शिवाजी कॉलेज। वेरी गुड। तो यार फिर यहाँ क्यों नहीं है तू शिवाजी कॉलेज, तो फिर यहाँ क्लास सर में मैं क्यों नहीं है? घर आ गया था बरेली। अगले क्लास से क्लास में होना चाहिए। जी जी। ऑलराइट। चंद्रशेखर जी, Hi sir, good afternoon. Yeah, this is Chandrasekhar from Hyderabad, but currently staying in Dubai. I'm working as accountant. very good, very good. We have many students in Dubai, Muscat, many students. Yes sir. So good, Yes sir, I very did good. MBA. Yeah, I did MBA. Now I want to pursuing ACCA. In my future goal, I want to move Ireland or UK. Then that's why I joined ACCA. It's a passport, boss. ACCA is a passport to go to UK, to go to Ireland, to go to Spain, to go to Madrid. You know, you name it and you have it. Good to go to Dubai also, right? You have many options in Dubai. You know, even in Muscat for that Yes. matter, Saudi for that matter, and so on and so forth. So the only thing, Chandrasekhar, I want to know is, do you understand Hindi or not? Yes sir, I understand. मेरे को मालूम है सर। Very good, very good. No, no. I tell you why I asked, because मैं एक सेशन दे रहा था, वो मैंने पूरा सेशन खत्म किया, and there was a lady in Qatar. She said, sir, I have not understood anything that you have said. I said, why the hell you have not spoken in the first 5 minutes? No, it is almost 3 hours. If we are done with the session, now you're telling me that you're not understanding, in Hindi. Anyways, मैं एक और भी चीज बता देता हूँ। कुछ ऐसे जन होंगे जिन्हें सिर्फ इंग्लिश या सिर्फ या फास्ट इंग्लिश फॉर दैट मैटर वो नहीं चाहिए। तो all of our sessions are going to be a right mix of English and Hindi to make sure that कोई भी जन जो कहीं से भी इंग्लिश में किसी भी शेप एंड फॉर्मेट में अगर स्ट्रगल करता है तो उसको वो परेशानी ना आए। बात समझ में आती है पूजा कुमारी जी? चलो मुनीब, मैंने सिर्फ नाम लेने के लिए लेना होता है बेटा, ताकि कोई सोए ना मेरी क्लास में बस। ऑलराइट मुनीब आना अहमद। मुनीब तो तुम्हें तो मैंने देखा हुआ है, तुम कहाँ हो आज? फीवर तो उसमें आ नहीं पाया मैं, करने का। तुम यहीं से दिल्ली से ही हो ना? यस सर। फिर पिटाई होनी चाहिए, क्लास भी क्यों नहीं है कोई? ऑलराइट, क्या हुआ बताओ चलो। सर मैं बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ DUS में। गुड, ओके। विशेष कुमार जी, Hello, sir. Good afternoon. हेलो जी, गुड आफ्टरनून। I am qualified cost and management accountant and currently working in HCL Tech. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ओके, Yes, एंड करंटली वर्किंग इन HCL Tech. एक्सेल टेक, ओके। क्या रोल है वहां पे? I'm finance executive, sir. नहीं, डेजिग्नेशन नहीं चाहिए मुझे, रोल क्या है वहां पे? और internal audit में हूँ sir. ठीक, आई गेट दैट। मैं रोल इसलिए पूछता हूँ बेटा, बिकॉज हम लोगों के पास जब कोई कंपनी अप्रोच करती है ना, जब यहाँ पे जॉब्स के लिए, तो अगर हमें रोल आप लोगों के पता होते हैं ना, तो देन वी कैन प्लेस यू एंड वी कैन गेट दैट अपॉर्चुनिटी फॉर यू।
तो रोल पता होना चाहिए, कंपनी या डेजिग्नेशन डजंट रियली मैटर। मुझे पता हो इंटरनल ऑडिट में कोई है तो मैं इंटरनल ऑडिट में कहीं आके पुश कर पाऊंगा ना, इन सम शेप ऑफ फॉर्मेट। ऑलराइट, गुड गाइस, एनी क्वेश्चन एनीवन हैज फॉर मी, एनी कोई सवाल मेरे से पूछना हो बिफोर आई रियली हैंड ओवर टू प्रेरणा मैम टू रियली टेक इट ऑन फ्रॉम हियर? कोई सवाल मेरे लिए पारी, कोई सवाल मेरे तो कुछ मेरे से कुछ क्वेश्चन एसीसी के बारे में, फ्यूचर के बारे में, कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा के बारे में, घबराहट के बारे में, टेंशन के बारे में, बैडमिंटन के बारे में? ये बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता है वैसे, जिसने बहुत गेमें बनाई है मुझे। वी आर डूइंग वन स्पोर्ट्स डे ऑल्सो वेरी सून, तो जो जो नहीं खेलता है ना वो आना जरा दिखाएंगे तुम लोगों को। Any question, guys? Anyone? More than happy to really pick it up, guys. It's your time, right? We're not starting the content today primarily because we wanted this to be a more of an informal discussion, chat with all of you guys. We really wanted you to understand हम लोग क्या कराने वाले हैं। अभी मैम आपको पूरा कंटेंट बताने वाली है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या होगा, क्या क्या आप करोगे, तो काफी सारी चीजें उसके अंदर हम समझेंगे। बट फॉर नाउ कोई सवाल मेरे लिए भाई, डाउट पूछना चाह रहे थे कुछ? लास्ट वन मैम, मैम पूजा कुमारी जी, हर्षदीप पुत्र पुत्र तू तो पूछ ला कुछ, कोई पूछता ही नहीं यार, तू तो पूछ ला कुछ। वैशाली, भुवनेश्वर, विशेष, एनी क्वेश्चन एनीवन? चंद्रशेखर, एनीथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड? Yes, sir. Sir, Go ahead. as I am working professional, but सर मेरे को अभी काम करके ये भी करना चाहिए ना, अभी स्टडी भी करना चाहिए। मैं कैसे मैनेज करूँ? मैं कर पाएगा? कितना टाइम हम स्टडी में लिए टाइम रखना चाहिए? वेरी गुड। अच्छा, ये सवाल ना कई बार वो लोग भी पूछते हैं जो फुल टाइम कॉलेज कर रहे होते हैं, वो लोग भी पूछते हैं जो फुल टाइम जॉब कर रहे होते हैं, और उन लोगों के पास भी ये सवाल होता है जो आर्टिकलशिप कर रहे होते हैं। सीए वाले स्टूडेंट जो पूरी पूरे दिन आर्टिकलशिप करेंगे, जिनके ऑडिट्स भी होंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो उन्हें भी ये टेंशन होती है कई बार। एक चीज चंद्रशेखर मैं आपसे भी बोलूंगा और मैं सब स्टूडेंट से भी बोलूंगा, एसीसीए का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एसीसीए में ना पेपर आप एक एक करके दे सकते हो। यू कैन गो वन बाय वन एंड गिव द एग्जाम, राइट? Now, one should not lose on to this benefit. One should not lose on to the advantage that you really have out here for giving one or two exams. At max, you should only plan for 2 exams at a time. You should not go for more than 2 exams at a time. Prefer one, but if not one, go for 2 if you are like, really totally into it. That is one. Second, मुझे अपने दिन में 3 घंटे चुराने हैं। I have to find out 3 hours a day, come what may. Saturday, these 3 hours will become 5 hours, 6 hours, depending upon, whatever the case is. But मुझे अपने दिन से रोज 3 घंटे चुराने हैं। You have to have 3 hours a day of study to really kill this exam in any way possible. अगर चंद्रशेखर मेरे से चीटिंग उन 3 आवर्स में करी कि 3 आवर्स नहीं निकाले और मेरे से चीटिंग करी, तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाना है बेटे एग्जाम में, पक्का चलाएंगे। बट हाँ, अगर वो चीटिंग नहीं करी तो भगवान श्री कृष्ण एग्जाम देते समय आपको अपने साथ खड़े मिलेंगे कि जा चंद्रशेखर, मैं तेरे साथ हूं बेटा, कर दे चढ़ाई। That is what it is gonna be. Now it is absolutely on you what you want to decide. अगर आप 3 घंटे रोज नहीं निकाल रहे हो तो आप ये मान के चलना आप एग्जाम का अटेम्प्ट मिस करने वाले हो इन सम शेप ऑफ फॉर्मेट। एग्जाम्स आसान नहीं होते हैं बेटा, मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत करने के लिए एक टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो 3 घंटे अपनी जॉब से निकालें। मैं बताया था, मैंने जब अपनी सीपीए करी, मैं सीए तो नहीं बोलूंगा, वहां तो हम बहुत ही ज्यादा देर पढ़ते थे, इससे मैंने अपनी सीपीए करी तो मैंने बना लिया था रूटीन कि मैं ऑफिस जाने से पहले 1.5 घंटा पढ़ता था और ऑफिस आने के बाद 2 घंटे पढ़ता। उसमें मैंने ये भी कुछ किया कि मैंने ऑफिस में एक्स्ट्रा टाइम रुकना बंद कर दिया, बिकॉज हम विप्रो में थे दैट पॉइंट इन टाइम, तो विप्रो में तो आने का टाइम होता था, जाने का कोई टाइम नहीं होता था।
तो हम आधा घंटा लेट भी जाएंगे, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, बट जाने का कोई टाइम नहीं है। 9 भी बज रही है, 10 भी बज रही है, 11 भी बज रही है, एंड सो ऑन सो। सो आई रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ कि नहीं, आई विल कम ऑफिस एट, हम 9 बजे पहुंचते थे, तो आई रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ, मुझे 9 बजे पहुंचना है और मुझे हर हाल में 6:30-7 बजे निकलना है। तो I have time from 6:30 to 8 in the morning and let's say 9 to 12 in the evening. तो मैंने वो टाइम निकालना ही निकालना है। ये पार्टीज, ये डेट्स, ये मस्ती 3 महीने 6 महीने के लिए छोड़नी पड़ेगी बेटा, तभी होगा कुछ, नहीं तो बेटा नहीं। सीरियसनेस चाहिए चंद्रशेखर, you brought a very relevant point, let me tell you that, but you have to be serious, you have to be serious Yes. for this course. We consider, and people who are doing chartered accountancy, we consider chartered accountancy to be very studious one, but we consider ACCA to be lower than chartered accountancy. That is a myth. That is a myth. जितनी CA टफ है उतनी ही ACCA टफ है। फर्क सिर्फ ये है, CA में जाओगे 4 एग्जाम एक टाइम पे दोगे, ACCA में जाओगे 1 एग्जाम एक टाइम पे दोगे या 2 दोगे। तो वो जो 4 की मेहनत है वो 2 पे करोगे या 1 पे करोगे, तो पॉसिबिलिटी इंक्रीज होने की या पास होने की बढ़ जाती है। बट ऐसा नहीं है कि पेपर आसान है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आसान होता तो बेटा कॉर्पोरेट वैल्यू नहीं करता, फिर कॉर्पोरेट कंसिडर नहीं करता, कॉर्पोरेट कहता नहीं भाई तुम उस लायक नहीं हो। अगर इसको CA के आगे पेडिग्री डाली जाती है और CA से compete करा जाता है, तो उसका एक कारण यही है that this is being pegged because of the value that ACCA brings onto the table as far as the content is concerned. बात समझ में आती है चंद्रशेखर जी? Yes, sir. Yes, sir. I noted. The one thing that I really want you to have at the back of your mind is, in the corporates, when you're working in an accounting role, in a finance role, there would be month ends, there would be quarter ends, there would be year ends. There would be audits, be it internal, be it external, be it statutory audits, and so on and so forth. You have to face all of that. But be true to yourself in giving 2 to 3 hours a day, come what may, sky is the limit then. Okay, sir. You have to prioritize this in some way possible. बात समझ में आती है? चंद्रशेखर जी, you with me on this? Yes, sir. Yes. पूजा Definitely, sir. कुमारी I will जी, follow. पूजा कुमारी ने हाथ खड़ा किया भाई, चलो पूजा कुमारी जी सवाल पूछो, चलो। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम एक अभी जैसे हमने तो अभी एनरोल ही किया है, इट्स लाइक वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी, सो अगर हम 2 एग्जाम की तैयारी करें तो नेक्स्ट 3 महीने तो हमारे लिए आई गेस कम होगा, अगर हम जैसे अभी स्टार्ट ही हुआ है और मेरा जो बैकग्राउंड है वो कंप्लायंस से है, बहुत ही डिफरेंस है अकाउंट्स एंड उसमें इतना अकाउंट्स नहीं होता इलेबोरेटली, है ना? तो उसके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि अगर हम 2 एग्जाम अभी चुने या फिर एक एग्जाम में एक बार बैठे, फिर नेक्स्ट जो क्वार्टर आए उसके लिए हम 2 एग्जाम प्रिपेयर करें? बेटा एक क्वार्टर में ना एक एग्जाम दे देना, ओके। एटलीस्ट पहले 1-2 बारी तो एक ही दो। फिर जब आप इसका वो स्ट्रक्चर समझ जाओगी ना, समझ जाओगी कि हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कैसे काम करता है, ये किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, वो आधे 1-2 एग्जाम देख के ना समझ आ जाती है। फिर बेटा आप 2 भी दे दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहला एग्जाम तो अभी तो एक ही देना है बेटा, एक ही दिन। अभी 2 नहीं देने बेटा। ठीक है। पढ़ाई करना चाहो तो 2 की कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि पढ़ाई 2 इंसान मैनेज कर, 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई मैनेज हो सकती है। पेपर मत देना 2 का, एक को बिल्कुल रगड़ो, एक ही पढ़ाई करो, उसको अगली बार किसी और सब्जेक्ट के साथ क्लब कर लेना, तो फिर 2 देने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी, बिकॉज एक सब्जेक्ट ऑलरेडी किया हुआ होगा। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? तो वैसा कुछ कर सकते हो अगर करना चाहो तो, बट अभी तो मैं पूजा एक ही बोलूंगा बेटा, एक ही पेपर देना चाहिए अभी तो, अभी 2 नहीं देने चाहिए बेटा। ठीक है, थैंक यू सर, बस इतना ही था। विशाली दुबे जी, कोई सवाल मेरे लिए? सर मैंने 5 पेपर के एग्जाम्पशंस लिए हैं, तो फिर मुझे आगे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए खुद को? 5 पेपर का एग्जाम्पशन लिया है आपने, तो आपको सवाल दोबारा पूछो। 5 पेपर एग्जाम्पशन लिया है, मैंने समझ लिया, उसके बाद तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, जो मैंने एग्जाम कर दिया है उसके रिलेटेड कुछ? आपका बैकग्राउंड बीकॉम ऑनर्स का है ना बेटा? यस सर। देखो बच्चे, हम ना हमेशा से एक चीज बोलते हैं कि, मैं पर्सनल लेवल पे अगर बात करूं, मैं हमेशा से कहता हूं कि एग्जाम्पशंस मत लो, बट मिल रही होती हैं तो हमें लगता है कि मैं दूं ही क्यों एग्जाम, जायज सी बात है।
और वो शायद गलत भी नहीं है। और व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर इज कि एग्जामिशन मिलती है वो पहले 3 पेपर की, और मेरे ख्याल एक यूके टैक्स की मिली होगी आपको और शायद लॉ की मिली होगी, राइट? ऐसे ही वही एग्जामिशन यस में। सर। अब आप पेपर दोगे बेटा तो पेपर फार से शुरू करोगे। फार में हम लोग इंश्योर यही करते हैं कि आपको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से कराएं, तो जो बच्चे मान के चलो कि एग्जामिशन लेके भी आए हैं उनको भी वो दिक्कत ना आए, तो वो बिल्कुल फाउंडेशन से ही शुरू होगा। बट ये जरूर है वैशाली कि आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है, क्योंकि जो जन एफए का पेपर दे के आया होता है ना, उसके लिए ना मेमोरी बड़ी रिफ्रेश्ड होती है, तो वो जल्दी पिक करता है। बट जिस जन ने पेपर नहीं दिया होता ना, उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। तो मान के चलो आपको टाइम ज्यादा लगाना पड़ सकता है, बट क्या आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है? पढ़ लोगे या सेशंस देख लोगे तो वो एक एडिड एडवांटेज जरूर से रहेगा। तो इसलिए हम कई बारी अगर आप if you'll approach the FinTram team, they will guide you in terms of how to get those sessions if you want. But आप वो sessions ले सकते हो पढ़ने के लिए, in case and reach out to team, they'll have their own process of thinking about it in terms of how do they do it. But वो आप सुन सकते हो। बट अगर मैं फार की बात करूं, जो एफआर की बात करूं, तो इसके अंदर हम स्टार्ट तो बेटा ग्रास रूट लेवल से ही करते हैं। हम कोई भी ना फंडा ऐसे नहीं बताना शुरू कर देंगे कि अगर आपका ग्राउंड नहीं भी स्ट्रांग है तो आप ना कर पाओ, ऐसा नहीं होगा। बट हम मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है वैशाली, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। ओके। ऑलराइट, एनी क्वेश्चन, एनीवन इन द रूम? भाई कोई क्वेश्चन? हाँ, टाइमिंग जनरली क्लास का 2:30 ही होगा या 3 o'clock होगा। अभी वो सेटल हो जाएगा आने वाले थोड़े दिनों में। वो पहली 1-2 क्लासेस थोड़ा सा होता है कि बिकॉज एवरीबडी इज गेटिंग सेटल्ड, बट 2:33 रहता है और 3 आवर की क्लास होती है। 3 घंटे की होगी ना मैम? 3 आवर्स की क्लास होगी। सैटरडे संडेज होता है, 3 आवर्स की क्लास होती है। फिर टेस्ट आएंगे बीच में, रिविजनरी सेशंस आएंगे बीच में। विल सी टू इट व्हेन टू फिट इन ऑल ऑफ दोस, बट प्राइमरली यही चलेगा बच्चे। वीकेंड्स पे ही क्लास होती है। कुछ क्लासेस मॉर्निंग में भी होती हैं, कुछ इवनिंग में भी होती हैं। ये जो क्लास रहेगी ये प्राइमरली यही रहेगी। यस मैम। अभी हम तीनों ने सेपरेट हैं। कौन सा वाला जो? यही वाला? ठीक है, नहीं किया। ठीक है। स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, क्लासेस भी रेगुलरली अटेंड करिए, बट पेपर बहुत ट्रिकी और थ्योरी और खेलते हैं बेटा, वो लोग भी खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो इस मतलब वो जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था वो लो हो चुका है अभी तक। तो अभी हमने जून के लिए प्लान किया है। मैं बेटा एक चीज आपको ना पहले तो ये बताया था, मैं सवाल पे आता हूँ आपके। बेटा जो भी ये कोर्सेज है ना, चाहे वो सीए हो, चाहे एसीसीए हो, चाहे सीपीए हो, चाहे यूएससीएमए हो, यहाँ ना बच्चा पढ़ के फेल तो हो सकता है, बिना पढ़े पास नहीं हो सकता। हम भी ऐसे नहीं है कि हमने पेपर दिए थे तो हम बस हमने दिए थे तो हम पास हो गए थे, हम भी फेल हुए थे। सीए में भी फेल हुए थे हम लोग, फिर दोबारा दिया फिर पास हुए। अपने मन में ना ये धारणा मत रखना कि मैं फेल हो गई तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं आप बोल रहे हो कि मैं जून में दूंगी, हम मार्च में खड़े, हम फेब में खड़े हुए हैं, हमें जून से आगे जाना ही नहीं है। हमें जून से आगे जाना ही नहीं है, हमें जून में ही किल करना है। और कुल मिला के बिना आपको जाने मैं बता रहा हूं, कुल मिला के ना सिर्फ एक ही कमी रही होगी, मैम आपके बिहाफ पे बोल रहा हूं, प्रैक्टिस। अपने हाथ से प्रैक्टिस में कमी रही होगी और कुछ भी नहीं रहा होगा। अपने हाथ से अगर सेक्शन बी सेक्शन सी ये क्वेश्चन किए रहे होंगे तो एग्जाम में बंदा नहीं हिलता है। देखा, वो आपसे एमसीक्यूज में एक एक्सटेंट तक ही खेल सकता है, लेकिन सेक्शन बी और सेक्शन सी में वो खेल जाता है। और उसको खेलने के से बचने के लिए ना बेटा हमें हाथ से क्वेश्चन करने ही पड़े। प्रॉब्लम क्या होती है बेटे कि ना जब हम स्कूल में होते हैं ना, जैसे हम क्लास 12 में, मेरा बेटा आजकल क्लास 10th में है, तो क्लास 10th का मैथ पढ़ रहा है, अभी मैथ्स का उसका एग्जाम हुआ। तो मैथ्स के एग्जाम में ना उसको हम क्या करते थे कि ट्यूशन सर उसको एनसीईआरटी करा देते थे, फिर वो एग्जाम्पलर दे देते हैं, एग्जाम्पलर करो, फिर उसे बोल देते हैं आरडी से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो।
फिर उसे अपने असाइनमेंट्स बना के दे देते हैं, फिर वो रेगुलरली चेक भी करते हैं, और नहीं करते तो पेरेंट्स के पास आ जाता है, फिर पेरेंट्स जाके बच्चे को डांट लगाते हैं, फिर वो उसे पुश करते हैं, तो वो वैसा सा एटमॉस्फेयर होता है। इन एग्जाम्स में क्या होता है बेटा, हम आपको एक स्ट्रैटेजी बताएंगे, हम आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, हम आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी देंगे, मॉक एग्जाम्स भी देंगे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन करेगा? कौन करेगा? अब ये वो माहौल तो है नहीं जहां पे एक एक स्टूडेंट से पूछा जाता तूने प्रैक्टिस किया, तूने प्रैक्टिस किया, 100 दिए थे, 8 किए, 18 किए, या 88 किए। पर पर्सन तो नहीं हो सकता यहाँ पे। लेकिन हमारे को क्या चाहिए, जैसे हम पढ़ते थे, असाइनमेंट मिला है ना, तो मैंने पूरा असाइनमेंट सॉल्व करना है, और नहीं हुआ ना सॉल्व तो मैंने मैडम को जाके बैठना है, मैडम ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए, प्लीज हेल्प मी विद। वो जो रिगर है ना, जिस दिन वो आ गया ना, आप अपने मार्क्स देख लेना, बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे, बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे। बस वो रिगर चाहिए। सेक्शन बी सेक्शन सी पेन एरिया है, आप खुद शायद पेपर देके शायद समझ गए होंगे, सेक्शन सी पेन एरिया ज्यादा होगा, बी भी नहीं होगा, बिकॉज बी के अंदर भी ना एमसीक्यू बहुत सारे आ जाते हैं, सेक्शन सी ज्यादा है। उससे बचने का सिर्फ एक ही कारण है बेटे, वो है प्रैक्टिस। सेक्शन सी के जितने क्वेश्चन मिलते हैं, जितने मिलते हैं, सारे सॉल्व करो, अपने हाथ से सॉल्व करो, सोल्यूशन मत दे, और जहां प्रॉब्लम आए उससे पूछो। जहां हम हाथ से प्रैक्टिस कम करते हैं, हम देखते ज्यादा हैं, क्योंकि आज ना, आज के डेट में सेशंस वीडियो पे अवेलेबल है, एज एन वीडियो अवेलेबल है ना, सॉल्यूशन का वीडियो अवेलेबल है हमारे पास, तो हम सॉल्यूशन का मैं कुछ ना, एक कुछ आजकल क्लास 10th के लिए भी ना कुछ प्लेयर्स आए हुए हैं, जो ना वीडियो सेशंस ही रखते हैं, 3-3 4-4 घंटे की क्लास रखते हैं। अब मैं अपने बेटे की बात करूं, वो भी ना सिर्फ सोल्यूशन देख रहा है बैठ के, 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार बोलने के बावजूद वो क्वेश्चन देख रहा है। जब आप क्वेश्चन देखते हो ना बेटे, सोल्यूशन देखते हो, आपको ये पता ही नहीं चलता कि मैं कहां अटकूंगा, क्योंकि आप सोल्यूशन देख रहे हो। अपने हाथ से करोगे तो पता चलेगा ना कि मैंने क्या कहां अटका, और फिर मैंने उस पर काम किया। जब मैं सोल्यूशन देखना शुरू कर देता हूं ना, वहां वो मुझे मेरी प्रॉब्लम साइट आउट नहीं होती। मेरे बेटे के साथ भी यही प्रॉब्लम है, उससे आप शायद यहाँ खड़ा होगा तो वो आपको बोलेगा कि पापा कितना डांटते हैं मेरे को, इसी चीज के लिए डांटता हूँ कि नहीं, सोल्यूशन नहीं दे। आप क्वेश्चन देखो, खुद प्रैक्टिस करो, जहां प्रॉब्लम आए फिर देख लो सोल्यूशन, प्रॉब्लम आती है कोई बात नहीं, बिकॉज वो तो एक ही बात हुई ना, प्रॉब्लम आई तो आपने सोल्यूशन देगा। लेकिन बेटा जब तक अपने हाथ से नहीं किया, आप खुद देखो अपने हाथ से कितने किए होंगे आपने क्वेश्चन, प्रॉब्लम विल गेट द आंसर योरसेल्फ कि नहीं वहां कमी रही है सर। मैं तो बिना जाने बोल रहा हूँ बेटा, मतलब मेरे लिए बड़ा कॉमन टॉपिक है ये, जहां हम देखते हैं। एसबीएल का पेपर है 3 तारीख को, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर का 3 तारीख को पेपर है। एसबीएल के बंदे पेपर कौन देगा? जो मैक्सिमम कॉर्पोरेट्स में होंगे, क्योंकि एक लेवल तक पहुंच गए होंगे। आज आप भी 2 साल बाद एक लेवल पे पहुंच जाओगे, 1.5 साल बाद। उनके पास टाइम नहीं है। 3 दिन से मॉक एग्जाम गया हुआ है सबको, आंसर करो। 31 स्टूडेंट हैं बैच में, 3 मॉक आए हैं मेरे पास, 3 मॉक आए हैं होके, 31 स्टूडेंट है बैच में। और जो ज्ञान आपको दे रहा हूं, ये मैं शायद हर क्लास में देता हूं। जब आप अपने हाथ से करोगे नहीं, तो आपको गलती कैसे पता लगेगी कि कहां मेरे से गलती हो रही? अपनी गलती सोल्यूशन खुद करके ही समझ में आ सकती है, और जिस दिन वो समझ में आ गई ना बेटा, उस दिन आप अपने आप उस पर करेक्टिव एक्शन ले लोगे, फिर वो गलती दोबारा नहीं होगी। आप मेरे कहे से सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन जितने भी मिलते हैं एसीसी की वेबसाइट पे, और जितने हैं आपके पास रिवीजन बूट कैंप में, आप सारे प्रैक्टिस करो। 1 बार नहीं, 2 बार करो। मॉक एग्जाम कम से कम 2 से 3 मैम आपको मिलेंगे, उन्हें प्रैक्टिस करो। आप अगर नंबर देख लेना, उल्टे हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे, 99.999 भी नहीं बोल रहा, और मैं कोई स्टार नहीं बना रहा कंडीशन अप्लाई करके, 100% हो जाएंगे। एसबीएल में ना केस स्टडी आती है। एसबीएल में क्या होता है, एग्जाम से पहले ना आपको प्री सीन मटेरियल आ जाता है। आई डोंट नो आप लोगों को पता है नहीं पता, बट उसका ना आधा क्वेश्चन पेपर एग्जाम से 15 दिन पहले रिलीज हो जाता है, केस स्टडी पहले रिलीज हो जाती है, और एग्जाम में उस केस स्टडी का बाकी पोर्शन आता है, जिसे हम प्री सीन मटेरियल बोलते हैं। एसबीएल की खासियत है इस एग्जाम में, एसबीएल का पेपर 15 दिन पहले हाफ पेपर रिलीज हो जाता है, केस स्टडी रिलीज हो जाती है, और
एग्जाम के अंदर वो केस स्टडी का बाकी का पोर्शन आता है, हम अपने हिसाब से उस केस स्टडी के बेसिस पे कितने मॉक बनाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, कंडीशन आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हो ना, कैसा भी होगा, ऐसा भी होगा, ऐसे अगर आपको दें और आप प्रैक्टिस ही नहीं करो तो एग्जाम में क्या होगा, स्ट्रगल होगी ना। मैं आपको बता रहा हूं 31 स्टूडेंट्स 3 मॉक्स इन माय मेल बॉक्स, ठीक है, एंड वी कैन इमेजिन द काइंड ऑफ रिगर दैट स्टूडेंट हैज ऑन दिस, क्योंकि पढ़ के लगता है ना मुझे आता है, जब तक हाथ से नहीं करोगे तब तक कमी पता ही नहीं लगती, और सारा खेल कमी का है। जिस दिन कमी पता लग गई, मैंने कहा ना भगवान श्री कृष्ण एग्जाम देते समय यहाँ खड़े मिलेंगे, जा बेटी फटाफट खत्म करे, प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और हम फिर दोबारा मिलेंगे रिजल्ट वाले दिन, और आप तीनों बैठोगे मेरे साथ, और हम उस दिन कॉफी के साथ क्या क्या ऑर्डर करते थे, कॉफी के साथ कुकीज, चॉकलेट कुकीज ऑर्डर करेंगे। बात समझ में आती है? कोई क्वेश्चन किसी का मेरे लिए? लास्ट चांस गाइस, मैम एनीथिंग आई कैन हेल्प यू आउट विद? सर एनीबडी ऑनलाइन? पूजा एनीथिंग मैंने कहीं कंफ्यूज कर दिया हो? चंद्रशेखर जी मैंने कहीं कंफ्यूज किया किसी चीज में? सूर्य प्रताप जी, शिवाजी कॉलेज से कौन था? सूर्य प्रताप, जी सर। अगली बार क्लास जी में नहीं मिला ना तो मैंने शिवाजी कॉलेज आ जाना। आ जाओ। All right, guys. Thank you very much for your time. I'll hand over, ma'am, to you guys and take it on from here. We are just a meeting away, guys. कोई problem हो किसी को किसी भी चीज का in terms of anything, we are just over here or in CP wherever, and we'll be more than happy to pick it up. All right, guys. Thank you very much. We look forward. Thank you. कुछ बातें मुझे ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल वैशाली, आपका जो क्वेश्चन था उसमें आई जस्ट वांट टू ऐड कि जो भी हमारी फर्स्ट 2-3 क्लासेस होने वाली हैं, दोस 2-3 क्लासेस आर बेसिस ओनली, ठीक है। व्हाटएवर यू आर गोइंग, जो आपने एफए में पढ़ना था और which is relevant for FR, we're going to cover all those topics in first 2-3 classes जो आपका orientation classes है, ठीक है। If still you want to get access to those FA classes just for the purpose of studying, आप वो ले सकते हो, ठीक है। बट हम लोग फर्स्ट 2 क्लासेस में आज तो नहीं, ऑब्वियसली संडे वाला क्लास में और नेक्स्ट सैटरडे विल बी ओरिएंटेशन क्लास, विल गोइंग टू कवर ऑल द टॉपिक्स रिलेवेंट फ्रॉम एफए, जो आपका एफआर में रिलेवेंट है, ठीक है। तो वो एक आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देन चंद्रशेखर, आई जस्ट वांट टू ऐड 3 आवर्स कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। वो 3 आवर्स जो सर ने बोला दैट इज मैंडेटरी, बट कंसिस्टेंसी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप कंसिस्टेंटली सारी चीजें करते रहोगे रिवाइज तो वो हो जाएगा, आप you'll get time to study and all, ठीक है। और मैडम और आप तीनों का प्रैक्टिस है ना, वही लैग हुआ है ना लास्ट टाइम, है ना। और अब ऐसे पढ़ना कि आप पहली बार ही पढ़ रहे हो। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे कि ये मैंने पढ़ा हुआ था, ये तो मुझे आता था, फिर वहीं जाकर लास्ट में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो स्टडी एज इफ एन एम्प्टी बकेट, और अब उसमें सब लेना दोबारा से स्टार्ट करो। सेम फॉर यू मिस्टर कर्व, राइट, ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। ऑन ऑफ इस वाले बैच में नहीं चाहिए अब। अच्छा ठीक है, अब पूरा ऑन है, फुल ऑन, चलो ठीक है। तो आपको एक जर्नल इंट्रोडक्शन मिल गया। लेट मी टेल यू अबाउट द टॉपिक एंड द सिलेबस। हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑफ 100 मार्क्स, 3 hours, ठीक है। These 100 marks are divided into 3 sections. These 100 marks are divided into 3 sections: Section A, Section B, and Section C. Section A is entirely MCQ, 15 questions of 2 marks each.
entirely MCQ from entire syllabus जो भी हम क्लास में करेंगे। तो 15 क्वेश्चंस है, 2 मार्कर्स ईच, जो entire MCQ से होंगे। हम क्लास में जो भी करेंगे, जो भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और जैसे भी MCQs करेंगे वो आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। Then we have section B. It constitutes 3 case studies, 5 questions each in 3 case studies of 2 marks, which totals 30 marks. ठीक है, ये entire MCQ based questions होते हैं और fill in the boxes types, which requires थोड़ा सा calculation and theory, तो theory and practical इसमें दोनों होता है। ठीक, then we have section C. Section C is entirely your solving ability questions. 2 questions होते हैं, 20 marks each, which is your 40 marks. You have to solve these questions either on a spreadsheet or a Word document. ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस की हमें जरूरत होती है वो इसकी होती है। Those who are working professionals, they have access to spreadsheet and Word पे कैसे काम करना है, थोड़ा सा उनका स्पीड भी अच्छा होता है। Those who are not, from the very beginning आपको प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी है, वो स्प्रेडशीट पर ही प्रैक्टिस करनी है। The moment we begin with section C questions, जैसे ही हम सेक्शन सी के टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आपको जो भी प्रैक्टिस करना है, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, दैट शुड बी ऑन अ स्प्रेडशीट ओनली। ठीक है, लास्ट में जाके यहीं पर ही प्रॉब्लम होता है। बेसिक स्प्रेडशीट है, नो एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज, नथिंग, नो पिवट टेबल, कुछ नहीं होता। सिंपल बेसिक एक्सेल शीट आपको मिलता है जिसमें आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब बात आती है व्हाट इज आवर करिकुलम और व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। हम लोग जो इसमें करने वाले हैं उसका एक आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, बट उससे पहले जो ये मेरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, आई गेस अभी जो इंट्रोडक्शन हुआ, एवरीवन इज फ्रॉम कॉमर्स फील्ड ओनली, तो जो भी हम यहाँ पे टॉपिक्स के नेम लेने वाले हैं वो सबके लिए न्यू नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेक्शन ए एंड सेक्शन बी की, तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल योर छोटे छोटे टॉपिक्स like tangible assets and your intangible assets. Majorly we have revenue contracts with customers, how to show revenue in different circumstances, वो होता है हमारा। उसके बाद the major concept we have are leases, how to account for the financial leases, आपके financial leases को आप कैसे account for करते हो in the books of lessee, वो हमें पढ़ना होता है। देन वी हैव फॉरेन करेंसी, बहुत छोटा सा टॉपिक है कि फॉरेन करेंसी को आप कैसे अकाउंट फॉर करते हो। देन वी हैव टैक्सेस, टैक्सेस में करंट टैक्सेस एंड डिफर्ड टैक्सेस होते हैं। तो ये हमारे सेक्शन ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और छोटे छोटे 1-2 टॉपिक्स होते हैं थ्योरेटिकली जो हमने करने हैं, बट मेजरली जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो टॉपिक्स हमारे यही होते हैं। अगर हम सेक्शन सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वी हैव सिंगल एंटिटी टाइप्स क्वेश्चन जो बेसिकली फॉल करते हैं सारी एडजस्टमेंट्स के साथ, सिंगल एंटिटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देन वी हैव कंसोलिडेशन, जो मेजर पार्ट आपका सेक्शन सी में है वो है आपका कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंटरप्रिटेशन ये थोड़ा सा आपको आइडिया दे गया कि व्हाट syllabus or what we are going to study in this financial reporting subject. ठीक है, टॉपिक्स देख के घबराने का नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि सेक्शन ए और बी कहाँ से आ सकता है, सेक्शन सी कहाँ से आ सकता है। व्हेनेवर वी स्टार्ट अ टॉपिक, जब भी हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपको बता दिया जाएगा कि ये सेक्शन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या सी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब प्रोसेस क्या रहने वाला है, I guess first 2 classes will be an orientation classes, just giving you a brief of FA, ताकि आपका एक बेस बन सके, आप उससे FR कर सको। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की, मतलब जो आपको पता होना चाहिए। वैसे हम जब सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें भी हम ऐसे नहीं करेंगे कि एकदम Z से स्टार्ट कर रहे हैं, विल स्टार्ट फ्रॉम A ओनली, बट थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन की हम क्या करने जा रहे हैं,
तो our next class will be an introduction orientation type of session only, जिसके अंदर what is financial accounting, what is financial reporting और थोड़े से basic introduction of the topics कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद we're going to have classes on every weekend, Saturday and Sunday, 3 hours class, ठीक। उस 3 hour class में हमने जो भी topic complete किया होगा, you will get a practice sheet every Wednesday, ठीक है। हर वेडनेसडे आपको एक प्रैक्टिस शीट आएगा विद द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दैट टॉपिक जो हमने सैटरडे संडे में कवर करा है, ठीक है। वो प्रैक्टिस शीट आपने बिफोर सैटरडे सबमिट करना है, इट विल बी इन अ गूगल फॉर्म में वो प्रैक्टिस शीट आपके पास आएगा। आपने वो प्रैक्टिस शीट बिफोर सैटरडेज क्लास सबमिट करना है, सीइंग द प्रोफेशनल नेचर सबका, कुछ बच्चों का है जो प्रोफेशनल ऑफिस गोइंग एंड ऑल, तो आप बिफोर द क्लास सबमिट कर सकते हैं। All your doubts will be taken in the next Saturday's class. Obviously, Wednesday को मैंने आपको practice sheet दी, तो Saturday को आपके जो भी doubts होंगे, we'll clear those doubts and then we'll move ahead with the next session. ठीक है, तो ये रहने वाला है। After completing 12 sessions of your book, 12 sessions complete करने के बाद we are going to have a semi mock test. तो आप ये समझ कर चलो कि कहीं पर भी आपको ढीला नहीं पड़ना है, ठीक है। कंसिस्टेंटली साथ साथ पढ़ते जाना है। जैसे ही 12 सेशंस कंप्लीट होंगे, हमारा एक सेमी मॉक होगा कॉन्स्टिट्यूटिंग ओनली सेक्शन ए एंड सेक्शन बी क्वेश्चंस, ठीक है। इन 12 सेशंस के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेशन सी। तो एक ए और बी हम कंप्लीट कर चुके होंगे, उसके बाद हम सी स्टार्ट करेंगे। आपका एग्जाम जून के फर्स्ट वीक में होता है, ठीक है। जैसे अभी भी 5 मार्च को है, तो यही 6 जून को होता है। जो सिलेबस कंप्लीशन का टाइम रहता है वो होता है 15th फेब बोल रही हूँ, 15th मई। 15th मई तक योर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड, ठीक है। 15th मई के बाद देयर विल बी रिविजन सेशंस, डाउट क्लासेस, प्रैक्टिस सेशंस, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। आपको मॉक्स दिए जाएंगे, आपको मॉक्स डिस्कशन के लिए सेशंस मिलेंगे, वट एवर योर डाउट्स आर, मतलब टिल, जैसे अभी कल भी मेरी क्लास है, जो भी ये मार्च में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके साथ मेरी कल भी क्लास है, पिछले संडे भी थी, तो अभी तक हम उनके साथ हैं। तो टिल द एंड ऑफ टाइम विल बी देयर। आपको जो भी डाउट है, जहां पर भी प्रॉब्लम आ रहा है, जिस भी टॉपिक में आ रहा है, वो आपको एंड तक पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। उसके अलावा कोई ऐसे डाउट्स हैं, और ये मत सोचना कि भाई इसको समझ में आ गया तो मुझे भी आ जाना चाहिए, ये तो हो ही जाएगा। सर ने भी यही बात करी ना कि आपको भी हो ही जाएगा वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेना। आपको नहीं समझ में आ रहा तो नहीं आ रहा, आपने पूछना है जब तक समझ में नहीं आ जाएगा, ठीक है। साथ वाले को आ गया इज नन ऑफ योर कंसर्न, आपको आना चाहिए, ठीक है। डन है। अब मेरे से कुछ पूछना है, कुछ है स्पेशल, ऐसा कुछ इसमें से, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, एनीवन, ऑनलाइन ऑफलाइन? यस। Ma'am, section C, how we can solve that each question? Sorry, I didn't get you. Yeah, in section C, how we can Hmm. do that solve? You mean that we need to do Excel, or how we can solve that questions? Section C. I'll be giving you all the section C questions when we starting it. Okay, and you have to solve it. मतलब the first question will do in class only. I'll also be doing in Excel कि कैसे इस question को solve करना है. So you'll get an idea how to solve these questions. Whenever section C started, I'll also be doing an Excel sheet only to show what format needs to be done and how working notes or how the presentation of your answer should be done. Okay, got it. Anyone else? जो ये MCQs होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती ना? No negative marking. No negative marking. Okay. Negative marking नहीं होती, किसी में भी नहीं होती। Okay, thank you. और सेक्शन मैडम? सी, हाँ सॉरी, हाँ जी आप बोलो। जी मैम, इसमें कितना मार्क्स के लिए पास मार्क्स है, कितना मार्क्स आना चाहिए? 50%। 50%, 50 मार्क्स आना चाहिए ईच बंदा।
50% is your passing percentage and there is no negative marking. ठीक है, and there is step marking also in section C. अगर आप step by step भी answer करते हैं, then you will get easily 10-12 marks in every section C question if you go by step answering your questions. And one more question, ma'am. It's regarding the exam dates. मतलब tentative dates क्या रहती है exams की? जैसे अगर जून में exam है तो? 5th or 6th June, the first week of June itself. Okay. Okay, thank you. Anyone else यहाँ पर? Clear है? Format, content, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? Done है? और कुछ पूछना है? मेरे को तो भाई नाम बता दो, मेरे से तो ऐसे अनजाने से नहीं होता। ने Sujan. सुजन, Yatharth. यथार्थ, Satyam Verma. सत्यम, हाँ जी ने गरिमा, गरिमा, जोसेमर, कस्टमर, गर्व, Anish. सॉरी Amish. अमीश, सत्यम, Vikas. विकास, Janak Singh. हाँ जी Janak Singh. जनक सिंह, सिया नहीं, सिया तो ये है, ये सिया, दिशा, Nikhil. निखिल, अर्शप्रीत, आन्या, Vishal. विशाल, there's अंशदीप, ठीक है, विशाल, ओके, बाकी ऑनलाइन मुझे नाम दिख रहे हैं, ठीक है। तो आई गेस आज का जो एजेंडा था वो इतना ही था, ठीक है। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू गो इनटू पहले एफआर का थोड़ा सा बेसिस एंड देन विल बी स्टार्टिंग विद आवर सेशन वाइज कंटेंट फ्रॉम दी पीडीएफ्स जो आपको प्रोवाइडेड है और बुक्स जो आपको प्रोवाइडेड है। तो फ्रॉम नेक्स्ट सैटरडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम दो सेशंस एंड बुक्स। अभी जो कल का क्लास होगा वी आर गोइंग टू ओनली हैव द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि हम क्या करने वाले हैं, मतलब आपका एफए का थोड़ा बहुत कवर करेंगे हम लोग कल वाली क्लास में, जस्ट टू गेट इनटू द वाइब कि अब एफआर में क्या होने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, Thank you, ma'am. बाय बाय, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू dear, thank you everyone.